اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تو بڈھا بہرو بول تیرا مجدد تھا تو انگریز کے 600 روپے پانے والا ماہوار۔ اچھا سن، یہ تیرا مجدد جو ہے قرآن پر جھوٹ کیوں بولتا تھا؟ تیرا جو مجدد اشرف علی تھانوی بہت بڑا قذاب اعظم تھا، حرام کی کمائی کھاتا تھا۔ سننا یار، تیرا مجدد قرآن پر جھوٹ کیوں بولتا تھا؟ بتا، قرآن پر تحریف تو کرتا ہی تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا۔ اب تم بتاؤ گے 100 سال کی پیداوار اللہ حضرت کو بتائے گا۔ سننا، یہ دیکھ، احکام شریعت میں لکھا ہے کہ داڑھی منڈانے اور کتروانے والے جو قرآن میں اس پر لعنت آئی ہے، تو قرآن سے کون سی آیت ہے؟ کیا تو یہ کہہ رہا ہے داڑھی منڈانے اور کتروانے والا جو ہے اس پر لعنت آئی ہے، حوالہ کہاں ہے؟ لعنت کون سی آیت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ رکو، میری بات سنو پہلے۔ رک کے بات کرو گے کہ بول بچن کرو گے؟ میں پوچھ رہا ہوں نا، 2 منٹ کی بات کریں گے، چلو حوالہ دو۔ چلیے، تو حوالہ آپ دیں گے، حوالہ میں دوں؟ تم بات کر رہے ہو، حوالہ مجھ سے مانگے؟ قرآن کا حوالہ دینا، قرآن کا حوالہ مانگ رہے ہیں، تیرا مجدد کہہ رہا تو بتانے کا حوالہ دو نا، احکام شریعت کا آپ نے نام لیا ہے، حوالہ مجھ سے مانگ رہے ہو؟ اچھا حوالہ دو تو بھائی کیوں نہیں دو گے؟ حوالہ دو گے تب تو کوئی جان پائے گا۔ ایک منٹ، ابھی حوالہ دے رہا ہوں۔ جلدی نہیں مجھے، آپ جلدی نہ کریں تو ٹھیک ہی رہے گا۔ کہہ رہے جلدی نہیں ہے مجھے، آپ جلدی۔ حوالہ پہنچ گیا، حوالہ پہنچ گیا، دیکھ لو۔ ایک منٹ رک جائیے، میں آ جاؤں۔ اللہ علیہ السلام، تحریر بھی کیا ہے کئی جگہ قرآن میں، کیا قرآن کی تحریر کیا ہے کتابوں میں۔ چلو اس کا حوالہ دے، یہ پہلے پڑھتے ہیں۔ جی بتائیے، اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ میرا مجدد کہہ رہا ہے، تجھے 3 بار میں بتا چکا ہوں، بولتا ہے کیا اعتراض ہے؟ میں تو بتا دیتے نا، چلیے کوئی بات نہیں، بتانے میں کیا اس میں۔ یہ کہہ رہا ہے نا کہ داڑھی منڈانے والا کتروانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید میں اس پر لعنت آئی ہے، تو وہ قرآن میں وعید وارد ہے، قرآن مجید میں اس پر لعنت آئی ہے، تو کہاں لعنت آئی ہے؟ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں لعنت آئی ہے؟ بتائیے۔ کہ وعید قرآن عظیم میں اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اچھا، تو آپ کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں لعنت کہاں ہے؟ ہاں، داڑھی منڈانے کتروانے والے پر قرآن مجید میں لعنت کی گئی ہے، وہ آیت پیش کر دیجیے۔ اچھا، میں آپ کو بس یہی آپ کا اعتراض ہے؟ اعتراض تو بہت ہے، ابھی یہ ایک کا اعتراض کے جواب دے۔ قرآن پہ جھوٹ بولا ہے، اس کا حوالہ تو دے۔ قرآن پہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے؟ جب آپ کو مسئلہ ہی نہیں پتا ہے کہ قرآن کی کیا عبارت النفس سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور اشارت النفس سے کیا؟ قرآن میں نفس سے نہیں، قرآن کہتا ہے قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے۔ جی میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ حوالہ بھیجا ہے، اسلامی داڑھی کے احکام، ٹھیک؟ یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، آپ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی، یہی والی عبارت خود آپ کے مولوی نے اپنی کتاب میں نقل کی کہ قرآن عظیم میں اس کے اوپر لعنت ہے، احکام شریعت۔ اب آگے دیکھیے، 2 منٹ مجھے بولنے دیجیے گا۔ اور اس کا جو ہے سرفراز خان صدر کہتا ہے تفریق الخواتر کے اندر، بھاگوں گا نہیں، یہ تفریق الخواتر میں کہتا ہے کہ جو مصنف کسی حوالے سے اپنی تائید میں پیش کرتا ہے تو اس کے کسی مسئلے سے اختلاف نہیں ہوتا، تو مصنف کا نظریہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے مولوی نے خود یہ عبارت بطور تائید پیش کی ہے، دیکھ لیجئے۔ داڑھی جو ہے اسلام میں داڑھی کا مقام، ٹھیک ہے، اسلام میں داڑھی کا مقام اعلیٰ حضرت۔ عبارت یہ لکھی ہے، داڑھی منڈوانے اور کتروانے والے فاسق مولین ہیں، اور اس کو امام بنانا جو ہے فرض ہو یا جو ہے تراویح ہو یا وتر نماز ہو، امام بنانا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اس پہ غضب وارد ہوئی ہے۔ وتر کہاں لکھا ہے؟ وتر کہاں لکھا ہے؟ کہاں پہ وتر میں نے پڑھا ہے؟ وتر کہاں لکھا ہے؟ وتر میں نے پڑھا ہے، تراویح لکھا ہے، وتر نہیں لکھا۔ وہی پڑھا تیرے مجدد کی عبارت نقل کر رہے ہیں اندر۔ ہاں تو مجدد ہی میں نقل کر رہے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟
एक मिनट रुक जाइए, अहमद रजा लिखते हैं, फिर इबारत नकल है। हाँ रुक तो जाइए ना, क्यों परेशान है? तेरे मुजद्दिद की इबारत आप तुम्हारे देंगे तो ये आला हजरत की जो इबारत बतौर तायद नकल की गई है, बतौर तरदीद नहीं। और तुम्हारा सरफराज का सफदर कहता है तायद नकल की बिल्कुल गई है। तायद नकल की है। देखो ना, मैंने आपके पास हवाला भेजा है। सरफराज खान सफदर क्या कहता है, अगर कोई मुसन्निफ किसी इबारत को अपनी किताब में पेश करता है, उसके किसी मसले से इख्तिलाफ नहीं करता, तो उसकी जो है वो होती है। आप देख ले। अच्छा ये तायद हो गई। हाँ, चलो तायद है, चलो तायद अगर है, ऐसी ये बात तायद है आपके तो मौलवी ने फतावा कहा लिख रजविया में तुम्हारे सुनो तुम्हारे मुजद्दिद ने जो लिखा वो अपने तौरात और यहूदियों की इबारत नकल की है और फिर आगे चला गया बतौर तरदीद नकल की है। आला हजरत ने तौरात और इंजील की नकल की है बतौर तरदीद, बतौर इंसानी जवाब देने के लिए। अब बोलता है बतौर तरदीद। ये आपके ये तरदीद नहीं है, ये बतौर तायद में इस्तेमाल किया। ये देखो, दाढ़ी में इस्लाम का मकाम, इसमें कहा। हाँ तो कहा देखो ना, बतौर तायद में नकल की है। आला हजरत की इबारत नकल करके बतौर तायद कर रहे हैं कि अहमद रजा ने लिखा है अपनी किताब में, ये भी, और अपनी किताब में और भी हवाला नकल करते हैं इसके तहत। तेरे अहमद रजा ने क्या कहा है कि ये कुरान में है, वो कुरान में तो नहीं दिखा पा रहा है। इसका मतलब तू मान रहा है कि तेरे मुजद्दिद ने कुरान बोला, ये तो मान रहा है ना तू। अच्छा कुरान में नहीं दिखा पा रहा आला हजरत ने नहीं, आला हजरत ने झूठ बोला, यही तेरा नजरिया। पहली बात तो ये है, जो दाढ़ी कटवाता है उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा होती है। क्या होती है? तकलीफ होती है। जो दाढ़ी कटवाता है, जो दाढ़ी मुंडवाता है, की बात नहीं समझा नहीं चाहिए। इबारत देखता मैं इबारत में समझ गया है, सुनो तो मेरी बात। दाढ़ी कटवाने वाला जी ठीक है, कुरान अजीम में उस पर लानत आई है, तो कुरान अजीम का नाम लिया है ना, तो कुरान अजीम मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने दोगे? जी मैं बता रहा हूँ। जो दाढ़ी मुंडवाता है तो उसके ऊपर जो है रसूलुल्लाह को ईजा होती है, और जब जो दाढ़ी मुंडवाता है, कतरवाता है, ईजा होती है। और जिसको ईजा होती है, तो ईजा देने वाले के बारे में कुरान मजीद में आया नहीं, सूरह अराफ की आयत है ये, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देते हैं। जो आयत की बात कर रही है उसको करना है जो हदीस है। मैं बता रहा हूँ कुरान मजीद में क्या आया है सूरह अराफ में, इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु व लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह और रसूल को ईजा देते हैं उसके ऊपर लानत है, ये कुरान में कहा है। तो दाढ़ी मुंडवाने वाले को रसूलुल्लाह को ईजा होती है जो दाढ़ी मुंडवाता है, ये तो साफ साफ मौजूद है। अच्छा तो और मैं दाढ़ी मुंडवाने वाले अच्छा सुनना तुमने जो कहा है कि कुरान अजीम में, अरे सुनेगा बात तो, इसमें तेरा मुजद्दिद कह रहा है कि दाढ़ी मंडाने कतरवाने वाला उस पर कुरान अजीम में लानत है। तो कुरान अजीम बोला है, हदीस तो नहीं बोला है। हदीस नहीं बोला है ना। ये देखिए, पहले मैंने आपकी अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता है, तो क्या तू हदीस से मिसाल देके कुरान में लेके जाएगा कि कुरान में ढूंढेगा? अब मैं बता रहा हूँ तुमको, ये देखिए मैंने तुम्हारे पास किताब भेज दी है, देख लीजिए। अशरफ अली थानवी की किताब है जिसका नाम है दाढ़ी मुंडवाने वाला गुनाह कबीरा, तो उसका मजाक उड़ाने वाला कुफ्र। ये अशरफ अली थानवी के या भी केस में लिखा है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी ईजा होती है जो अपनी दाढ़ी को कटवाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी कटवाता है। और कुरान मजीद में क्या कहा गया है, इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु व लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह रसूल को ईजा देते हैं उनके ऊपर लानत है। तो जब दाढ़ी कटवाता है तो उसके ऊपर लानत है ही, क्योंकि वो अल्लाह रसूल को ईजा देता है। अशरफ अली थानवी कहते हैं दाढ़ी कटवाने वाले भी ईजा होती है रसूलुल्लाह को। तो कुरान में तो मौजूद है जो ईजा देता है उसको ईजा देता है। अल्लाह के रसूल को हमको जो ईजा होती है वो हदीस है। अल्लाह के रसूल से जो ताल्लुक है वो हदीस है। लेकिन तेरा मुजद्दिद कह रहा है कुरान अजीम कुरान में लानत है, कुरान मजीद में लानत मौजूद है। नहीं सुन, कौन सी आयत है कुरान मजीद में? कुरान मजीद में सूरह अराफ की आयत नंबर 56 है। दाढ़ी मुंडाने वाले पर कुरान, दाढ़ी मुंडाने वाले के ऊपर लानत है। क्यों लानत है? क्योंकि जो दाढ़ी जो मुंडवाता है, कतरवाता है, मैं बता रहा हूँ, दाढ़ी मुंडवाता है जो कतरवाता है, उससे रसूलुल्लाह को ईजा होती, तकलीफ होती। और कुरान ने कहा इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु व लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह और रसूल को ईजा देते हैं उसके ऊपर जो है दुनिया जहान के लानत है। तो कुरान में ईजा देने वाले को लानत कहा गया। और असल में थानवी कहते हैं कि ईजा होती है, रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है।
दाढ़ी मुंडवाने के ऊपर तो कुरान की इशारतन नफ्स तो बात वजात के साथ साबित हो रही है। अच्छा ये बताओ, सुनो, कुरान में जो हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी चीज से ईजा होती है तो उसका हवाला दे सकते हैं कि ये कुरान में ये बात आई है। देखो ईजा हो सकती है, मैंने अच्छा ईजा नहीं होती है नहीं मानते हो, तुम्हारे अशरफ अली थानवी क्या कहता है ईजा होती कि नहीं होती? उसने लिखा है ईजा होती, रसूल अल्लाह को ईजा होती। और तुम्हारी किताबों में लिखा है कि जब कब्र में जाओगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी तो किस मुंह से जाओगे? ये भी यहाँ तक लिखा है दाढ़ी के वईद में कि अपनी दाढ़ी कंडवाते हो मुंडवाते हो तो रसूल अल्लाह को ईजा नहीं होती। असल में थानवी कहता है ईजा होती है, और कुरान में कहा गया ईजा देने वाले के ऊपर लालत है। आया तो देखो बात करने के लिए आला हजरत को तहरीर साबित कर रहा था कि आला हजरत ने कुरान पे झूठ बोला है। अरे ये तेरा जो कुरान में झूठ बोला है कि अल्लाह की लानत है दाढ़ी मंडाने करवाने वाले। तो ये बताया ये कुरान की कौन सी आयत है? मैंने तो साबित कर दिया ना, कुरान की कौन सी आयत है? अब जो है बिला वजह तू तशद्दुद कर रहा है। कुरान की कौन सी आयत में लिखा है? अच्छा इसका ये मतलब है कि जो चीज कुरान का हवाला दो तो भाग गया क्या? तो कुरान नहीं, कुरान तो तेरी हालत खराब होगी, जवाब तुझसे नहीं बन पा रहा। कुरान सुनो मुझे अच्छा आइए बताओ, फतावा रजिया से मैं हवाला देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, और मैंने दोनों हवाले तुम्हारे पर्सनल पे सेव कर दिए। अबे भाग नहीं रहा, एक बतौर तारीख तुम्हारे सरफराज था सल्तान में लिखा है। ये इसने मान लिया है कि इसका मुजद्दिद कुरान पर झूठ बोला, क्योंकि कुरान की कोई आयत ये पेश नहीं कर सकता। मैंने पेश कर दिया, कुरान मजीद की आयत मौजूद है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनुल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह रसूल को ईजा देते हैं उसके पर लानत है। जब लानत है ईजा देने, तो ईजा किससे होती है? रसूल अल्लाह को दाढ़ी कटवाने वाले से ईजा होती है। तुम्हारा थानवी कहता है दाढ़ी कटवाने वाले रसूल अल्लाह को ईजा होती है। ईजा तो बहुत चीजों में होती है, तो इसमें भी ईजा होती है ना, जो ईजा देगा हर चीज में ईजा देगा रसूल अल्लाह को तो लानत है। अच्छा ये मानता है कि अगर कोई भी ईजा देते हैं अल्लाह के रसूल को तुम्हारी सुनो, अभी तुम्हारी दुर्गत यही नहीं हुई, अब दुर्गत तुम्हारी यही नहीं हुई। तुमने ये कहा कि तुम्हारे मौलवी ने अपनी किताब में दाढ़ी में इस्लाम में दाढ़ी का मकाम उसने बतौर तायद में लाया है कि अहमद रजा ये भी लिखते हैं अहकाम शरीयत के अंदर। ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है तेरा मुजद्दिद जो लिखा है कि दाढ़ी मंडाने का करवाने वाला उस पर कुरान अजीम में लानत आई है। मैंने साबित कर दिया बेहमदी तला, ठीक है, बेहमदी तला हवाला तेरे पर्सनल पे भेज दिया है। तूने क्या सोचा था कोई अरशद रजा के पास जाएगा नया हवाला लेके तो उसकी हालत खराब हो जाएगी? जिसमें दाढ़ी मंडाने वाला और कतरवाने वाले पर कुरान मजीद में लानत आई है। एक भी हवाला में एक हवाला दे दिया मैंने तेरे पर्सनल पे भेज दिया है, जो अल्लाह रसूल को ईजा देते हैं और जो लानत है उसके ऊपर, और रसूल अल्लाह को ईजा होती है दाढ़ी कटवाने वाले से। वो हदीस है, वो हदीस अलग चीज है। किसी चीज की भी चीज हो जो रसूल अल्लाह को ईजा देगी, कोई भी शे हो, कुछ भी हो, देखो कोई भी रसूल अल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देगा, कोई भी शे हो, वो तकलीफ होती है उसको। रसूल ने बताया कि लानत आई है, नहीं लानत कुरान अजीम में, कुरान में अजीम में लानत कहा गया है, दाढ़ी मंडाने वाला। हाँ तो आला हजरत ने कुरान में लानत कहा है, चीजें कुरान में लानत है। हाँ कुरान अजीम में तेरा मुजद्दिद का नाम लिया है ना। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, बताया मैंने दिखाया ना कुरान मजीद से। कहाँ कुरान मजीद में लिखा है दाढ़ी मंडाने वाला करवाने। जाओ बेटा तुम्हारा हो गया काम, इस तरह से बातें मत किया करो, तुम्हें आता जाता कुछ नहीं बात करने का। आते हो ये वायरल करूंगा इंशाल्लाह, खूब वायरल करूंगा इंशाल्लाह।